आज हम लोग बात कर रहे हैं इक्वल पेरेंटिंग के बारे में। When one of the parents is working too much, does that give them the right to be an absent parent? ये बेस में गड़बड़ है। औरत का काम है घर संभालना, मर्द का काम है बाहर जाके काम करना। वो जो मर्द है ना बेचारे, उनमें भी एक तरह का प्रेशर है कि उसी को कमाना है, उसी को खिलाना है, उसी को लाना है। Why can't he ask for help? मैं अपने आप को बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छा पिता मानता हूँ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन मेरे डैड बहुत अच्छे फादर थे। I think it's fairly safe to say कि आप किस तरह के पेरेंट्स बनते हैं depends a lot on how you were raised. Partially, yes, because I have seen many parents, they don't want to follow what they had gone through in their childhood. How is it that the society is looking at you after you become a mother? Everybody wanted me to sit at home, take care of kids, and I say, why can't I do both? And मुझे तब लगता था कि अरे मैं किसी को हेल्प मांग रही हूँ तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मतलब एक 10 मिनट की चाय पीना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। Did you feel anything like that as a man? Women are far more superior than man, any day. I think that's it. Women, yeah. I think women are far more superior than men. And एक new member जब family में आता है तो the major change which happens is in a mother's role. As a man, I think the first step and the biggest step you can take is take care of your wife. अगर मैं 100 लोगों को जानता हूँ तो I think 10 लोग हैं जो आज भी अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। When Romit says 10%, it's more than 10%. I think the percentage is still 1%. When we talk about equal parenting, women still take 40% more of the domestic workload than men. What do you do when it comes to domestic responsibility? Many times I have seen that a mother, she doesn't rely on the father. But why is that? As per statistics, mom guilt होता है जब आप काम पे ज़्यादा टाइम लगा देते हो. But a dad, on the other hand, feels guilt when he has to spend more time at home and reach work late. Equal parenting is not a competition. It's not equality between the parents. It is. So guys, we are back again on Candid Confessions, the Raw Roundtable. और आज हम लोग बात कर रहे हैं equal parenting के बारे में. And I have some amazing guests with me. Romit is here, who's a very hands-on father. Are you? Yeah, of course. Thank you so much for having me here. मैं बहुत खुश हूँ इस टेबल पर आकर, और मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा खुश है। कि क्या पति पैदा किया मैंने। क्या मैं इतना काबिल हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ पर कैंडिड कॉन्फेशंस में हूँ, तो ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। एंड देयर इज गौरी। गौरी इज अ मदर ऑफ 2 किड्स, और बच्चों का जो एज गैप है हम उसे डिस्कस कर रहे थे अभी, 13 साल का एज गैप है दोनों में, दोनों बच्चियों में। एंड you are one of the mothers that I look forward to when I think about my own motherhood journey. And Debolina here is a parenting coach. She also gives lectures on mental wellness in corporates. So I thought अगर हम एक father का perspective लें और एक mother का perspective लें तो एक expert का perspective भी होना ज़रूरी है. So I want to ask you the first question, Romit. Do you really, now serious question, do you really think you're a hands-on father? Of course, मैं अपने आप को बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छा पिता मानता हूँ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन मेरे डैड बहुत अच्छे फादर थे, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड जीने को मिला। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि एक ज़िंदगी है, और टचवुड आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम लोग इतना कुछ जानते हैं और इतने सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्त मेरा एक दोस्त है जिसने अपने माँ बाप को बहुत जल्दी खो दिया था स्कूल लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई बिन वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए दे गेव मी द बेस्ट चाइल्डहुड, और मैंने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा है ऐसे, और वही चीज़ें मैं अपने बेटी के लिए कर पा रहा हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे बहुत सीरियसली कहना पड़े कि आई यू अ गुड फादर, आई यू अ हैंड्स ऑन फादर, आई से येस। एंड व्हेन आई से दिस आई फील दैट माई डॉटर वो बहुत प्रोटेक्टिव फील करती है, केयरिंग फील करती है। एक तरीके से ये सोच सकती है कि अगर मैं घर पे आती हूँ और मैं पापा के साथ जाके नीचे खेल सकती हूँ, पापा मुझे पढ़ा सकते हैं, एंड मुझे कुछ भी अगर शेयर करना है तो वो मैं अपने पापा के साथ शेयर कर सकती हूँ। जब वो ये सब चीज़ें सोचती है तो मुझे लगता है कि मैं एक सक्सेसफुल डैड हूँ। But tell me something कि you're talking about your parents, how they raised you. You think it makes a difference to what kind of parents we become depending on what kind of parents we had? सी मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत कुछ आपके ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं,
और एक टीचर है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो 25 के 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब कर पाएंगे जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं लेकिन उनके बच्चे इतने लायक नहीं निकलते हैं लाइफ में। हाँ, करेक्ट। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड बट ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आप जब एक एनवायरनमेंट में होते हैं, एक हेल्दी गुड पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होते हैं वाइल ग्रोइंग अप, तो बहुत चांसेस ये हैं कि आप भी एक बोलते हैं कि एक लायक इंसान या एक अच्छे पर्सन बन पाए, क्योंकि आपको वही सिखाया गया है। और आपको जब कहते हैं कि झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, जितनी चादर है उतनी ही पैर ओढ़ो, फैलाओ। जैसे पैर फैलाओ। तो जब आप ये सब चीज़ें आपके पेरेंट्स सिखाते हैं आपको, और ये भी बोलते हैं कि अगर आपको जितना मिला है बी हैप्पी विद दैट एंड डेफिनेटली वर्क हार्ड, बट एट द सेम टाइम बी कंटेंट। बहुत एक ये सब चीज़ें हमें जब बचपन में सिखाई गई थी, तो वही चीज़ें हमने अपने अपनी डॉटर को सिखाई है। एंड आजकल जब सोशल मीडिया है एंड बच्चों को एक्सपोजर एक अलग है, स्कूल में भी जैसे आप देखें कि एक बच्चा हाई एंड लग्जरी कार में आ रहा है और एक बच्चा एक आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहा है, या फिर समर हॉलीडेज़ में कोई इंटरनेशनल हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, कोई इंडिया में हॉलीडेज़ बता रहे हैं, कोई बच्चे हॉलीडेज़ पे भी नहीं जा रहे हैं। सो दैट कंपैरिजन थिंग हैज़ बिकम अ लॉट मोर आज के टाइम पे बाय जस्ट लुकिंग एट सोशल मीडिया पिक्चर्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड दिस एंड दैट। सो आज जैसे अब हमें बचपन से सिखाया गया है कि आपकी जितनी चादर है आप उतने में आप एंजॉय खुश करें, रहें, राइट। खुश रहें। तो ये सब जितनी चीज़ें जब चादर है जितनी उतने चादर है पाँव आप फैलाओ। उतने पैर फैलाओ जब आप कहते हैं, तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपकी टीचिंग्स हैं, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, सिंपल टीचिंग्स। जब ये आप पुट फॉरवर्ड करते हैं एक बच्चे की तरफ, तो फिर बच्चा भी बाकी चीज़ों को देखकर समझता है। ही डजंट क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स और अनरीजनेबल थिंग्स, एंड दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर पे बना रहता है। So I want to ask you, Gauri, that I've seen you, since I know you personally, I've seen you ki you are pretty much like a father to them as well. Although the father's there, but you feel like that much more hands-on कि मतलब मैं कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी. Do you think that has something to do with your own, the way you were brought up? I mean, no, actually, it's not about. I actually okay. Let's talk about this. This is very important. As आपने बोला कि childhood बहुत important होता है, वैसे ही I'm from a very low middle class family. And no, my parents taught me everything, but they couldn't provide us everything. And sometimes we wanted them to be there, but my father was always working, and mom was busy at home. And sometimes we were scared. We wanted them to be around, but they weren't because, of course, उनको कमाना हमारे लिए कमा रहे थे. But they were busy in their work and this and that. So एक कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने रोमित ने भी कहा कि वो बचपन की जो चीज़ होती है आपके दिमाग में वर्क करती है, तो आई ऑलवेज थॉट कि व्हेनेवर मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे जब होंगे दे आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर देम। चाहे मेरा पार्टनर कुछ भी सोचे, जैसे यश का चाइल्डहुड अलग से गया है तो उसका थिंकिंग प्रोसेस एक अलग है और मेरा थिंकिंग प्रोसेस अलग है। मेरा थिंकिंग प्रोसेस ये है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आई शुड बी द फर्स्ट वन दे कम टू एंड टेल मी कि मम्मा कोई भी लिटरली एनीथिंग। लाइक मैंने अपने बच्चों को यहाँ तक समझा के रखा कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो आई विल बी द वन टू स्लैप यू द हार्डेस्ट, बट आई विल बी द वन हु विल स्टैंड विथ यू। What you're saying is कि या तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि आपने जैसा बचपन में देखा वैसा आपने रेप्लिकेट किया, आपको इतना अच्छा लगा कि आपने वो रेप्लिकेट किया, और एक पर्सपेक्टिव ये है कि जहाँ पर मेरी लाइफ में अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत भी मिस थी तो मैं अपने बच्चों को वो कमी कभी भी महसूस ना होने दूँ. What do you think, Debolina, as one an more thing expert? I wanted to say कि Yeah. इसका जैसे as she can also say this कि इसका दूसरा इफेक्ट भी हो सकता है हाँ, दूसरे पेरेंट्स पे कि अगर किसी को मेरे जैसा चाइल्डहुड मिला है तो वो ये भी सोच सकते हैं कि हम तो पल बढ़ के हो ही हाँ. गए ना बड़े, अभी बच्चे बढ़ जाएंगे, Exactly. यू नो हाँ. वो भी हो सकता है। बट आई टुक अनदर पर्सपेक्टिव। हो Correct. सकता है मेरी तरह दूसरी जो होंगी वो उन्होंने ये सोचा होगा एंड उसमें भी कोई गलती नहीं, ठीक है, हो सकता है उनको लगता है कि ठीक है बच्चे पल ही जाते हैं, But बढ़ in ही a जाते way, हैं। I think it's fairly safe to say कि आप किस तरह के पेरेंट्स बनते हैं depends a lot on how you were raised. Partially yes, partially no, because I have seen many parents, they don't want to follow what they had gone through in their childhood. The negative part. The positive part, I would say that they want to change it and make it better. Absolutely. Okay. So let's come to the point of finances. In fact, उससे पहले हम थोड़ा करियर की बात करते हैं कि आजकल इक्वल पेरेंटिंग को लेके तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ big companies who are actually encouraging equal parenting.
big corporates are also supporting mothers getting back to work. But actually, honestly, let's talk about how the career of a woman changes after she becomes a mother vis-a-vis a man. So, what is it that you went through after you had your baby, and what is it that you went through? So, you want to go first? I think it's just not for mothers. I would say it's for every woman when she wants to work. सबसे पहले तो जहाँ से जिस एरा से मैं आती हूँ वहाँ से सबसे पहले तो कई बार होता था कि क्या ज़रूरत है काम करने की, शादी करके ही तो जाना है। और शादी करने के बाद वहाँ पे सामने वाली पार्टी भी कभी बोल रही कि वी डोंट वांट आवर बहू टू बी Bahu to work. वर्किंग, बट स्टिल अगर तुमको काम करने अपनी खुशी के लिए तो तुम कर लो। लाइक नॉट माई इन लॉज, हाँ, दे माई फादर इन लॉ, माई मदर इन लॉ, दे ऑलवेज सपोर्टेड माई करियर, बट आई हैव सीन सो मेनी केसेस लाइक द फ्रेंड्स दे यूज्ड टू टेल मी कि दे डोंट वांट मी टू वर्क सो आई एम लीविंग वर्क, और कुछ ने बोला कि नहीं यार मैं तो कंटिन्यू करूंगी काम करना। एंड ये ये बेस में गड़बड़ है। जहाँ पे बेस हमारी सोसाइटी का शुरू होता है वहाँ पे ये बताया जाता है कि औरत का काम है घर संभालना, मर्द का काम है बाहर So जाके true. काम करना। Very तो उसकी वजह से एंड ये इसके चलते हुए वो जो मर्द है ना बेचारे, उनमें भी एक तरह का प्रेशर है कि उसी को कमाना है, उसी को खिलाना है, उसी को लाना है। व्हाई कांट, अगर उसकी पार्टनर केपेबल है कमाने के, घर में लाने के, एक बेटर फैमिली को और बेटर बनाने के, व्हाई कांट ही आस्क फॉर हेल्प? How is it that the society is looking at you after you become a mother? As an actor, I'm asking you, did you face anything? I mean, yeah, everybody wanted me to sit at home, take care of kids, and I say, why can't I do both? And and seriously, Chavi, I have asked my parents, I have asked people around me, I have asked, शुरुआत में जब मैंने at the time of my first kid, I was 24. एंड मुझे तब लगता था कि अरे मैं किसी को हेल्प मांग रही हूँ तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ, बिकॉज मैं वही सीख सीख के बड़ी हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं So किसको when you बताऊँ, when क्या you say बोलूँ। मैं help मांग रही हूँ, what define help? एनीथिंग यू व्हेन रात को जब मैं बैठी हूँ बेबी को लेके, कोई और भी उठो और उसको तुम भी लो, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी। अगर मुझे कभी आई मीन न्यू मदर्स कैन रिलेट टू दिस कि उनको ये होता है कि अगर 10 मिनट भी कोई बोले ना, ओके गिव मी द बेबी एंड हैव टी, तो उनको लगता है ओह थैंक यू सो मच, आई रियली नीड दैट। मतलब एक 10 मिनट की चाय पीना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एंड तो उसकी So वजह से then how do you think that if you can manage work, how will you manage work? अगर इतना pressure, and I completely understand because I went through the same thing. 2 साल तक मैंने भी काम नहीं किया, but I didn't work because I was not confident enough to leave my child in somebody else's. Frankly, I asked my parents, I asked my in-laws, I told them कि we need your help, we want somebody to be at home, because मैं छोटे बेबी को ऐसे घर पे छोड़ के तो जा नहीं सकती। यस, आई थिंक 2-3 इयर्स का मैंने सबैटिकल लिया था। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि कब तक यश अकेला Yeah, कमाएगा, एंड व्हेन correct. आई कैन व्हाई शुडंट आई। तो मैंने उनको पूछा तो मेरे पेरेंट्स ने कहा, देन उसके बीच में माय फादर आल्सो ही गॉट डायग्नोस्ड विद समथिंग, सो देन आई टोल्ड देम कि दिस इज आइडियल, एंड यश ने भी बोला कि यस देन यू शिफ्ट विद अस, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव, दे शिफ्टेड विद अस। लाइक हमारे टाइम में वो बहुत रेयर ये था हाँ, कि correct. लड़की के माँ बाप आके रह रहे साथ में, बट we were all of us, we were together in this. First of thankful and hats off to my parents to take the step. Then my in-laws, they were only thanking my parents for coming and staying, So I'm just saying कि ये पूरा एक साथ मिलके ही अगर कुछ चेंज करना है ना, तो एक इंसान नाम के लिए होता है, उसके पीछे पूरा परिवार होता है, और वो होना भी चाहिए। Yeah, like they Very say, true. it takes a village to raise a Yeah, baby. exactly. So I want to ask you, Romit, कि जब when Reha was born, तो did you feel anything from the career point of view as a man? जैसे I'm telling you my experience that suddenly मतलब मैं जब when I got pregnant, when I found out that I'm pregnant, I had signed a Star Plus show as the title lead. And I took a step back because I thought कि अभी show on air जाएगा, then I'll start showing after 4, 5, 6 months. I didn't know कितने दिन में you start showing. तो मैंने कहा it's better to quit. And the minute the baby was born, I suddenly started getting बुआ, चाची, ताई के roles. And suddenly मतलब I thought ये 6 महीने में क्या change हो Exactly. गया? I was 3 months pregnant when I said no to that show. ये 6 महीने में क्या बदल गया? So I felt that as a woman, it was very hard. I mean, nobody was willing to accept me as the same kind of actor, same kind of face anymore. And for corporates, I've heard a lot of women say, and you would agree, कि Yes. it's very difficult to leave the child in somebody's care and then go to work, and then Yeah. there's I think there's a lot of postpartum depression or a lot of stress hormones at play. You're not capable of handling the work stress as well as domestic stress. एक point पे आप ये भी सोच रहे हैं कि I hope my child is okay. You're feeling guilty for going to work. Did you feel anything like that as a man? See, honestly,
यहीं पे ही बात खत्म हो जाती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि women are far more superior than man, you know, any day, you I know, think that's it. women, yeah, I think women are far more superior than men, and यही गॉड का, you know, this is the nature, this is what the universe also tells you, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब रेहा पैदा हुई थी 2010 में, एंड मैं ये कह सकता हूँ कि 2025 में आई वॉज प्लेइंग अ 30-year-old, सो 30 साल का एक यंग सा, एक आई वुड से, सो 15 साल बेबी के बाद भी आई वाज, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हियर द रोल कम्स इन, बिकॉज एक न्यू मेंबर जब फैमिली में आता है तो द मेजर चेंज विच हैपन्स इज इन अ मदर्स रोल, एंड as a man, I think the first step and the biggest step you can take is take care of your wife. आप सबसे पहले make her feel comfortable, Yeah. क्योंकि you know this is the most crucial part. जैसे कि आपने कहा, we all have, you know, gone through that phase where in the middle of the night बच्चा, you know, mother को उठा रहा है for a feed, or you know, for some reason, you know, she's getting up and she's checking, she's changing the diaper, and at that time you can't be like कि ये मेरा तो काम नहीं है, you know, a father, a husband cannot say that. You are equally responsible, and I would say कि आज भी बहुत सारे, आई थिंक अगर मैं 100 लोगों को जानता हूँ तो आई थिंक 10 लोग हैं जो आज भी अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो, इन ड्यूटीज़, यू नो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में, क्योंकि 90 लोग नहीं करते Oh, but दे that's फील, amazing. बिकॉज 90 पीपल आर नॉट डूइंग इट अनफॉर्चुनेटली, और जो 10% जो लोग कर रहे हैं, I think hats off to them, and I think they are the real alpha men. Yeah. They are the real They are alphas. the real alpha men. Yeah, they, because आप अगर अपनी वाइफ को, अगर अपनी स्पाउस को, अपने पार्टनर को अगर आप खुश रख रहे हैं लाइफ में, तो that's a, you know, that's a healthy relationship. I hate this thing जब वो एक मूवी में दिखाते हैं या टीवी पे दिखाते हैं, two men, you know, having a drink together and saying कि हम तो कुछ नहीं करते यार, और बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है या क्या हो रहा है हमें तो पता ही नहीं है. I don't even know how it's funny. Yeah, exactly. But people, the society finds it very Yeah. funny, unfortunately, and so ये जो चीज़ है ना कि, and आज अब इसमें ऐसे अल्फा मैन में आप डाल दो एक ऐसा इंसान जो अल्फा भी है और जो डायपर भी चेंज कर रहा है. I think that is the Ooh. biggest alpha thing. Absolutely, I that's think so that's cool. yeah. So now my question here is that I'll ask you, Debolina, कि जब यही काम जब एक माँ करती है जो रात को उठती है. अच्छा, I remember that when I became mother for the first time, it's not like Mohit was never there. He was always there, but he was also shooting. So I would feel the guilt that I would feel as a mother is कि यार ये सुबह उठ के शूट पे भी जाएगा, फीड के लिए तो मुझे ही उठना है, तो मैं उसको क्यों उठाऊं? डायपर भी मैं चेंज कर दूंगी, बर्ब भी मैं कर दूंगी, मैं तो घर पे ही हूँ. अभी जब मेरा खुद का साइकोलॉजी ये है कि भाई मैं तो घर पे ही हूँ, बट घर पे नहीं भैया, मुझे हर 1.5 घंटे में उसको फीड करना है. इट्स नॉट ईजी, राइट? एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई ओन हेल्थ एज वेल. इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी वेरी टैक्सिंग. बट व्हेन अ मैन स्टिल वेक्स अप एंड स्टिल चेंजेस द बेबी, स्टिल चेंजेस द डायपर एंड बर्ब्स बेबी, ही इज कंसिडर्ड लाइक सुपर अल्फा. Becomes Yes. a big और thing. हमारा तो काम ही है, हम तो We कहेंगे तो got. कौन सी बड़ी बात है. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट पर्सपेक्टिव? It should not be like this. And a lot has changed, Chavi, as in Has now. it? It has. It has. So when Romit says 10%, it's more than 10%. That's how I would like to believe. Because now the society, parents, they are trying to normalize this, that it's okay for a father to feed the child. It's okay for the father to change the diaper. My husband did that. I never stopped working. So I have seen in my house that Abhik has always been there. Though he has his own travel firm and he travels 10 to 15 days in a month, but he has always been with me. So I think normalizing this is very, very important. Absolutely. Yeah. Normalizing Absolutely. this is very, very important. Although I beg to differ also in the statistics that you came up with and you came up with. I think the percentage is still 1%, if not less, Really? because we are only talking about a very specific segment of metros. Tier 1 cities. Tier 2, Tier 3 में क्या हो रहा है? आप Right. सोच भी नहीं सकते हो. Agree. I mean, you look at our own domestic workers who are coming to our Yes, house and yes, here. yes. How much are they working? Oh, yes. And how much are they working towards their domestic responsibilities? Correct. And if we look at the statistics which are as per Tier 1 cities in the corporates, they say that even when both partners are working full time, women still take 40% more of the domestic workload than men. So my question is also कि as a father, it's beautiful that you said that you need to take care of your wife first, because I absolutely agree. क्योंकि at a certain level हम जो महिलाएं होती हैं उनको लगता है कि हाँ we know best, हमें ज़्यादा पता है बच्चे के बारे में, हम
not important, मगर बच्चे के बारे में क्या पता है हमें पता है. So if we have somebody who's taking care of us, it's a huge help. But what do you do when it comes to domestic responsibilities? Because when we talk about equal parenting, we talking about equal finances, we are talking about equal corporate roles, we are talking about equal domestic roles and parenting roles. तो domestic roles में आप क्या करते हैं भाई साहब? See, the thing is, when you're staying in a city like Mumbai, especially, and हमारी इतनी fast life है, जो घर पे we have, ऐसा नहीं है कि ये आप काम करोगे, ये मैं काम करूँगा. हमने शादी जब हमारी हुई तो ऑटोमेटिकली थिंग्स फेल इनटू प्लेस. एंड आई रिमेंबर माय मदर, मुझे उस वक्त ब्लिंकिट होता नहीं था, तो जो भी सामान मंगाना होता था, आई यूज्ड टू गो एंड गेट इट माई सेल्फ. एंड मेरी मॉम हम लोग को वैसे ही बड़ा किया उन्होंने. हम हमारे मम्मीज के ब्लिंकिट थे. हाँ, हम अपनी मम्मीज के ब्लिंकिट थे. बोले जब मैं लेकर आ. Two boys and you guys are two Yeah, girls. so we are two boys, so we did everything. So I still remember मैंने एक अवार्ड फंक्शन में जा, like अवार्ड फंक्शंस होते हैं हर साल, तो I was presenting an award. फिर the next day my mom went and told me जाके दूध लेके आना और अंडा और ब्रेड लेके आना है. तो I was like, mom, last night मैं अवार्ड दे रहा था स्टेज पे, और हमारी लाइफ we have थोड़ी तो इज्जत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली हमारी. ममा आप इसको भी बोल सकते हो ड्राइवर को, या नहीं, यू गो एंड गेट इट, या सो वेजिटेबल. तू जो अंडे लाता है वो वेजिटेरियन अंडे होते हैं, तो plant based. या प्लांट बेस्ड. या so the thing is that, so आज भी like if I have to get fish, or if I have to get chicken or anything, chalo, sometimes we get it online. Otherwise I like to go myself to the vegetable market, the Orlam market जो है, वहाँ पे जाके I do the shopping myself. And D-Mart से बाकी का सामान या other stuff जो online आ जाता है, nature basket. So these are domestic responsibilities. वो automatically आपको घर चलाना है, and we are two independent people, so we have to, it's not like कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ. It's not like that at all. आपको खुद का because it काम is खुद ही not. करना है. Exactly, it's not. And where it comes to my daughter, like if I'm in case coming home early, or if I'm not shooting that day and I'm at home, तो रेहा स्कूल से आ रही है, that taking care of her at that time, and having lunch together, and getting to know what homework has she done, what is pending, next day exam hai ki nahi. So all of that is like basic thing. And if Okay. I'm shooting, then Tina takes care of it from her office. She'll make a call to Reha, and she'll see to it that everything is sorted at कभी home. ऐसा हुआ है कि because of Reha, because of your child, one of you has to take an off from work, Of course. and have you been able to do that? Oh yes, I have. In fact, जब रेहा का एनुअल कॉन्सर्ट डे होता है तो आई टेकन ऑफ. या नहीं तो फिर एक टाइम हुआ था कि हम शूटिंग में तो ऐसा होता है कि देर आर हाँ, बहुत जाना है तो डिफिकल्ट जाना होता ही है. है, correct है. तो मैं गया हूँ शूट पे. आई हैव रिक्वेस्टेड द टीम 7 o'clock की शिफ्ट या 9 o'clock की शिफ्ट, एंड आई हैव टेकन अ 3 hour break, and I have gone to the annual concert, attended, and I've come back. I've done all of that. Agar for some reason you have to take Reha to a doctor for important, and I have to be there with her. Absolutely. So we, I think these are also moments that we don't want to miss also. I think yeah. मुझे याद है मोहित जब हमने SIT start किया था, Ariza was 2 years old, and the reason why Mohit agreed to do this, because मैं तो परेशान हो चुकी थी, right? मेरा तो मतलब it was like right, my cards were laying right there that TV तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बुआ चाची तो मैं नहीं कर पाऊंगी बच्चे को छोड़ के. I want to do something of my own which allows me to spend time with her as well. But the reason why he got convinced, although he was actually working for 2 and doing very well for himself at that point, is that he would get more time to spend with Ariza, and he was feeling like an absent father in the first 2 years. He felt कि यार ये क्या है, उसने पहली बार चली, तुम वीडियो भेज रही हो, ये हुआ वीडियो भेज रही हो, आज उसको फीड करना है तो छुट्टी लेनी पड़ रही है, ये रोज का काम है, मैं रोज करना चाहता हूँ, I want to bathe. And he was like, he really wanted to do all of those things, and he felt his hands were tied, and it was a big decision that we took. But I think everybody can't do that कि काम धंधा छोड़ के आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लो because of the child. So I want to ask you कि यश घर के काम में कितना हेल्प करता है? Like what do you, how much do you think he actually chips in, and how much do you think he chips in otherwise, and how much do you think he doesn't chip in because of you? घर के काम में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता. मतलब उसका ये होता है कि मैं लिटरली जैसे बच्चों को बताती हूँ ना, वैसे मैं यश को भी बताती हूँ, तुम ये करोगे. मतलब बच्चे कभी कभी अपने आप कर लेते हैं. यश को बोलो तुम ये करोगे, हाँ ओके, फिर हाँ बोलता है, फिर करता है, लेकिन वो अपने आप सोच के कि अच्छा इससे ये कनेक्टेड है तो मैं ये भी वो नहीं होता उससे. जैसे कि अभी कहीं जा रहे हैं तो मैं उसको यू आर कमिंग विद अस, लाइक व्हाट विल आई डू, ऐसे यू आर कमिंग विद अस, देन इज ओके, पर इज लाइक पापा यू आर कमिंग विद अस.
मम्मी ने बोल दिया था कमिंग विद अस, देन ही सेज यस। बट घर के कामों में ही जस्ट एक तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो होता है ना, वो बंदा जिसको आप एक काम दो वो 50 काम और खोल के रखे, फिर आपको लगेगा क्यों दिया इसको दिया काम। काम? यश इज Oh वन my ऑफ दोस गाइस Is कि this like a tactic that men use? वो एक्चुअली ना यश पता जैसे- नहीं यूज नहीं करता, जैसे वो मोहित नहीं बोलता है, होता काम उससे, इतना बुरा करो कि सामने वाला खुद बिकॉज कर ही ले। हैज एम्बैरेस्ड हिमसेल्फ सो मच कि सब लोग ऐसे कि व्हाट, एंड ही इज लाइक ऐसा छोटा सा मुंह करके सॉरी मैं सीरियसली कर रहा था, मतलब वो कुछ भी करने चाहेगा, कुछ गिरा देगा, पड़ा देगा, एंड फिर मेरा मुंह ऐसा होता है, ही इज लाइक मैं साफ करूंगा। मैंने कहा राइट, तुम अंदर से पोछा की जगह टॉवल लेकर आके साफ करोगे, फिर वो काम मेरे पे ही पड़ेगा। एंड जैसे होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं कि तू सब करती इसलिए वो नहीं करता। टेल मी वन थिंग, किसको आराम करना अच्छा नहीं लगता? हु डजंट लाइक टू सिट एंड कि अच्छा आप करो, ठीक है, यू डू इट, I'll sit. But can I say something here that women do have a problem of micromanaging. तो आराम आदमी क्यों कर लेता है? आदमी आराम क्यों कर लेता है? बिकॉज उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पे आपने कॉफी उठाई, थोड़ी गिर गई, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट ही इज इग्नोरिंग इट और समथिंग। हाँ। ही जेन्युइनली इट डजंट बॉदर हिम, बट अ वुमन विल फील अरे टेबल रखा है, थोड़ा सीधा नहीं है, उसको थोड़ा सीधा कर दूं मैं जरा। अरे नहीं, कप वो का छवि handle सारी नहीं होती, वो हमारे जैसी होती है कुछ थोड़ी सी जो थोड़ी ओवर होती है, जिनको वो होता ना क्या ओसीडी होता है कि सीधा सब सीधा, ये सीधा अब हमारे फोन भी ऐसे है, तो आई एम सो हैप्पी कि सामने ऐसे फोन रखा है, वो सबने उल्टा रखना चाहिए फोन, ताकि हम सारे मैच करें। तो ये हम लोगों की प्रॉब्लम है, सारी औरतें ऐसे नहीं होती। But do you think this is the reason why a lot of fathers cannot be hands-on fathers? सी मैं ये अपने पति के बारे में बोल सकती हूँ, उसका तो कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। बट वन थिंग आई नो दैट व्हेनेवर मेरे दोनों बच्चों में से किसी को भी उसकी जरूरत होगी, ही इज गोना बी देयर। मतलब Of course. कभी भी छोटी से छोटी चीज क्यों ना, मतलब बच्चा ये बोले कि मुझको यहाँ जाना है, तो ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं छोड़ो ना, क्या करेंगे, तो ही इज लाइक कि मायरा बोल रही थी जाना, चल नहीं, लेकर नहीं, of चलते हैं ना, course, थोड़ा सा टाइम निकालना तेरा, आई नो यू आर बिजी, टाइम निकाले चल कर आते हैं, आधे घंटा 1 घंटा चल कर आते हैं। किसी ने बोला पापा खाना खाने के लिए बाहर जाना है, सो मेरा ये होता है कि आई एम मोस्टली, मेरा बाहर का खाना थोड़ा कम होता है, हम लाइक घर पे खाओ, तो फिर बच्चे पापा के पास जाएंगे, मम्मी को बोलो ना बाहर डिनर के लिए आज जाने के लिए, देन हील कम एंड हील पटाओ मी कि चल ना थोड़ा जा, मेरा मन कर रहा है। तो तुम्हारा मन क्यों कर रहा है? तुम्हारा मन तो कभी करता नहीं। तो अभी तो पता चल गया, वही जाके कोई या तो परी ने तो मायरा ने कुछ बोला होगा कि मम्मी को जाके बोलो ऐसे। मायरा तो स्टिल शी कम्स टू मी, परी थोड़ा सा वो करती, बड़ी है ना वो, तो वो करती पापा मम्मी को बोला ना बाहर जाने के लिए। तो फिर ये आएगा, फिर जैसे ही आते ऊपर में समझ में आता है कुछ ना कुछ वो काम लेके आए, इन लोगों ने उसको कुछ बताया हुआ है, और वो कुछ बोल आइसक्रीम मंगाए क्या आज? मैंने कहा सारे उल्टे काम लेकर आता है तुम, और ये बच्चे तुमको बराबर यूज करते सारे उल्टे काम That's करने like के a लिए। definition of a loving father. Yeah. But tell me, Romit, कि आपको कभी ऐसा लगता है कि you want to do a little more for Reha, but Tina has her own set rules, and your opinion is always sidelined. I think I think टीना को यहाँ होना चाहिए था क्योंकि I was just supposed to say कि remember she's going to watch this podcast. completely. You'll be in trouble. एब्सोल्युटली। और एक्चुअली हरकतें जितनी भी है ना, मैं खुद करता हूँ, आई डू इट फॉर माई सेल्फ, एंड उसमें रेहा क्या रेहा यू वांट टू हैव आइसक्रीम, आई वांट टू हैव अच्छा, आइसक्रीम। यहाँ उल्टा है। हाँ, तो मेरे घर पे वैसा होता है कि एवरी डे अगर आइसक्रीम आ रही है तो रेहा इज लाइक पापा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हैविंग आइसक्रीम एवरी डे? अच्छा रेहा, आई जस्ट फील लाइक हैविंग, तो उसका भी ओके आई विल आल्सो हैव। तो टीना इज लाइक कि शी हैज टू कीप अ चेक ऑन मी कि रोमित, अगर रोमित स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो फिर रेहा ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन चलेगी। एंड शी थिंक्स दैट देयर आर 2 किड्स इन द हाउस। ऐसा नहीं है कि आई एम 10 on 10 as a husband or father. I think she keeps improving and keeps tweaking, I think. But let's say कभी बच्चा बीमार हो गया, okay, and I'm asking this question to all of you. बच्चा बीमार हो गया and you have to decide the course of action. Do you decide? Like let's say उसको बुखार हो गया, 102 बुखार हो गया, what would you do? When बच्चे जब बीमार पड़ते हैं, that's really Exactly, you know, that's a really nazuc हाँ, spot. and true वो test of and the thing is कि हर बच्चा बीमार पड़ेगा लाइक अपनी लाइफ में, मतलब एंड वो बच्चा जब पैदा होता है तो वो काला टीका लगा लो या ये कर लो, ऑल ऑफ दैट, एंड जब सबसे छोटे थे तो और तकलीफ होती है, राइट? तो उस वक्त आई एम अ गाय हु पैनिक्स एट दैट टाइम, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, एंड माय वाइफ टेक्स ओवर एट दैट टाइम कि शी टेल्स कि अच्छा, of course we rush to the hospital, I do those arrangements, but she's the one who takes charge and she says ki acha, we have to do this, ye syrup dena hai, and I'll have to keep I don't have to even remind her. She's very smart that way. Everything is very she's very clear with what she wants to do, and she does. She takes charge. Yeah, she and takes what about you?
आई थिंक एज ही सेड ना, यश ऑल्सो पैनिक्स एंड देन हमको यश को बोलना पड़ता है यू गो आउट ऑफ द रूम, सो हम ठीक से सोच सके। मुझको जो करना है मैं तभी सोच पाऊंगी जब रूम शांत होगा। नो नो, आई टेक हर एंड गो। ऐसे हाउ कैन यू टेक हर एंड गो? तो ही शी इज लाइक व्हाट कैन आई डू। हम सिर्फ उसको बोलते यू जस्ट गो आउट ऑफ द रूम, सो आई कैन थिंक कि कौन सा दवाई देना है। ऐसे आई नो क्या देना है क्या नहीं देना है, बस देन ही जस्ट सेज कि व्हेनेवर यू नीड मी यू जस्ट कॉल मी। बट हाँ, वो डिसीजन मेकिंग उससे नहीं होता, नहीं होता है। कभी भी नहीं होता वो कि क्या करे। एंड आई थिंक जब हड़बड़ी मचती है ना, तो ही कांट टेक एनी डिसीजन। So I think in our case, what happens is that if I'm the one at home, I know exactly what to do. It's not like I don't. कि 102 है तो मुझे उसको आइब्यूजेसिक देनी है, और 100 तक है तो क्रोसिन Crocin देनी देनी है, और किस एज के हिसाब से कितना 5 ml 8 ml कितना देना, all that I know, पानी and all of that. But I'll still call Mohit and I'll tell him that this is the fever and this is the medicine that I'm giving. And then I'll take his approval. बहुत सही। And if Mohit is the parent at home, he'll do the same. He'll know कि क्या देनी है, and then but he'll call me कि अच्छा उसको इतना बुखार है तो मैं ये दे रहा हूँ, ओके हाँ दे दो, कितनी दूँ, इसको 8 ml देनी है, अच्छा उसको है तो 5 ml। दिस वी डिस्कस, या आई टेल हिम डॉक्टर की फाइल में देखो लास्ट मंथ कितनी दी थी, उस हिसाब से दे दो। सो इट्स ऑलवेज अ डिस्कशन, नोबडी पैनिक्स, बट आई थिंक दैट वे आई फील दैट वी आर pretty much 50-50 in our responsibilities That's as well as work. एक तो also working together ना, it has made a lot of difference I think to the parenting, because before that dynamics were completely different. वो जा रहा है काम करने, मैं घर पे हूँ, परेशान हो रही हूँ, I had postpartum depression also, I was all over the place. But once we started working together, he also saw that, oh my God, she's really working hard and now she has to go take care of the baby. No, what can I do for her? What can I do for Ariza, and how can I be more present? And that is how we have grown together as parents and sort of understood. But also अगर हम guilt की बात करें ना, तो as per statistics again, mom guilt होता है जब आप काम पे ज़्यादा time लगा देते हो. Like if a mom gets late to come back home from work, she feels mom guilt कि यार. But a dad, on the other hand, feels guilt when he has to spend more time at home and reach work late. कि आज मैं शूट पे लेट हो गया, मैं ऑफिस लेट हो गया, मैंने बोला मैं 12 बजे तक आता हूँ बिकॉज मुझे बच्चे को लेके जाना है. He feels that guilt at that time. What do you have to say about that? See, firstly, I would like to say कि you were right, like what you were talking before, कि Tina, whatever she does with Reha, like whether it's with medicines or education or any extracurricular activities, she always shares with me. And It's she always like a always, shared कि decision. dad has to know, like this is what we're giving our child, or this is what is happening. So this is one thing in our relationship. Second thing, when it comes to me as a father, I always say कि there are 24 hours in a day, and अगर मेरी शूट अगर 2 घंटे लेट हो रही है या 12 घंटे कर रहा हूँ, जो भी है, if I'm not shooting, I'm at home. So I don't have that guilt factor at all, and I'm a guy who doesn't take stress. मतलब एक आप कोई I was recently reading a book which said that don't stress over small stuff, and there are so many self-help books and things like that, and I think it's like an inbuilt thing in me that there's one life and you got to be happy. Don't take stress. If there are challenges, face it head on. If there is a problem, solve it first. Don't procrastinate it. आप उसको push मत करो for the second day. तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि अगर मैं लेट शूट पे पहुंच रहा हूँ, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है. I've always been on time. But if I'm not being able to spend time with my daughter, yes, ये कभी कभी हुआ है कि मैं 9 बजे रात को आ रहा हूँ या 11 बजे आ रहा हूँ, माई डॉटर इज स्लीपिंग, या फिर मुझे कम वक्त बिताने को मिला उसके साथ, तो ये मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीकेंड पे मैं वक्त निकालूं एंड आई प्ले विथ हर. Compensate for the lost time. Completely. कि मतलब आप You believe कुछ in more quality time Yeah. spent rather than quantity. totally, and there are times when आप शूट नहीं कर रहे हो और आपके पास क्वांटिटी है, and आप क्वालिटी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका बच्चा उस वक्त शायद the child wants to read a book or she wants to go out with her friends and she doesn't want to spend time with the father. That's okay, chill. सुबह ब्रेकफास्ट कौन बनाता है रेहा के लिए? See, हमारे we have domestic help, तो वो बनाती है. Otherwise, on a weekend, I love to do it. I really like Do you to. really like I to do. cook? I You love. liar? I'm a very good cook. I I've remember sent. जब आंटी होती थी तो हमें बोला जाता था कि आओ मैं कबाब्स बना के खिलाऊंगा. फिर आंटी बनाती थी और ये किचन में घुस जाता था हमारे आने से पहले ही हिलाता हुआ. देखो मैंने बनाए हैं See, बहुत. जब माँ होती है तो yes, mothers takes care of everything, but you know that I'm a very good cook. I make mutton, chicken, and a very close friend of mine is a very good cook. You know him.
We'll talk about him on a Mommy special is episode. Yeah. very soon now inviting me also for dinner. Oh, Mutton and chicken. yeah. So I'd His love very good to. friend has invited you many times. so yeah. So coming back to what, and breakfast banana is very simple. Like Acha. whether it's omelette, Do you, pork, do you fried ever egg, ever get anything. into the nutrition quotient of ये जो खा रही है उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, थोड़ा पोर्शन ऑफ चिकन, थोड़ा पोर्शन See, ऑफ हम घर पे हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए, और आजकल माय डॉटर इज 13 years old एंड वो खुद लाइक आज जैसे कि मैंने कहा कि आई गॉट आइसक्रीम होम एंड शी सेड पापा व्हाई यू ऑर्डरिंग एन आइसक्रीम, आई डोंट वांट टू हैव इट, आई डोंट वांट टू ईट जंक फूड. अगर Become very बर्गर conscious, शी yes. द किड्स हैव बिकम वेरी अवेयर, दे वांट टू ईट दाल, दे वांट टू हैव चावल, घर दे का वांट टू हैव खाना। सैलड. इफ आई एम हैविंग माय सैलड शी से पापा आई वांट टू हैव अ लिटिल पोर्शन ऑफ इट, मुझे सैलड खाना है. तो दे आर मच मोर अवेयर एंड दे डोंट वांट टू ईट But जंक like फूड. when the घर का खाना, the menu is being decided, Yeah. do you have any role to play in it? ऑफ कोर्स माय आज क्या वाइफ बना है लंच में? लंच में तो आज राजमा चावल बना था. Very एंड good. एंड द थिंग इज, अरे हम बॉम्बे फैमिलीज आर वेरी डिफरेंट, आपको सब पता होता है. और आई थिंक टीना लाइक टचवुड शी इज अ वेरी गुड वाइफ एंड अ वेरी गुड डॉटर टचवुड. सो वो एक दिन पहले भी पूछ लेती कि क्या खाना है, बिकॉज अगर घर पे अगर दीदी बना रही है खाना तो शी डजंट वांट कि खाना वेस्ट हो, कि भैया ने खाना नहीं खाया एंड ऑल दोज थिंग्स, वो भी होता है. हाँ और बिल्कुल. तो ये सारी जो छोटी चीज़ें होती हैं बहुत मायने रखती हैं. एंड शी आस्क्स एवरीवन, लाइक मेरे फादर इन लॉ, वी ऑल स्टे टुगेदर. एंड तो मेरे फादर इन लॉ टचवुड ही सेज he doesn't have he's very happy that way. I'm the one who's very fussy when it comes to food. तो अगर मुझसे नहीं पूछा जाता है तो फिर उस दिन तोरी बनती है. तो आई एम लाइक टीना, we've had a very happy married life for 15 years. ये तोरी क्यों बनी है? तो शी नोज कि फिर इट्स बेटर कि पूछ लो यार, पनीर बन जाए कोई और दाल बन जाए, चिकन बन जाए, फिश बन बट जाए. तुम्हारे घर में कौन डिसाइड करता है मैं मेन्यू? डिसाइड करती हूँ। यश ने कभी डिसाइड किया है? मतलब सी जब मैंने जो मैं डिसाइड करती हूँ, एक्चुअली आई एम महाराष्ट्रियन एंड यश इज हरियाणवी जाट, तो मुझको हमेशा आई एम अ फूडी, सो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि ये जो दो कल्चर है उनका जो बेस्ट फूड है वो हमारे घर में होता है ऑलवेज. लाइक महाराष्ट्रियंस का And भी I've जो seen है you have like multiple things Yes, in every yes. meal. तो उसका ये कहते हैं यश इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड, लाइक नो फ्राइड एंड दिस, पहले से उसको पसंद ही नहीं है. जबकि मैं कभी चटर मटर मैं खा लेती हूँ, बट वो नहीं, ही इज वेरी पर्टिकुलर. देखो ना कैसा है वो, तभी तो फ्रीज हो गया वो अब. तो दस, और उसका ये होता है कि एंड देन मैं कहीं ना कहीं वो नॉर्थ की चीजें पसंद करती हूँ, वो कहीं ना कहीं यहाँ की चीजें पसंद करता है. और अभी तो बच्चे जो हमारे हैं वो उनको भी वो दोनों चीजें पसंद है. लाइक हमारे पास कभी भी कोई फेस्टिवल होता है तो हमारा पूरी आलू की सब्जी, श्रीखंड, अमरस, ऐसा वो महाराष्ट्रियन मेनू होता है. नॉर्मली जो होता है हमारे राजमा चावल बनते हैं, हमारे यहाँ पे गूंद होता है हमेशा, हमारे यहाँ पे अभी भी घर में चूरमा बना हुआ है. सो ऑल नॉर्थ इंडियंस But दे when विल you decide अंडरस्टैंड. the menu, do you हाँ. keep in mind everyone's preference? Yes, You do. yes, I do. And चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ. you want to try वो your best. न्यूट्रिशंस जाने चाहिए, वो उतना करेक्ट. और रोटी से गेहूं और की ऐसा वो नहीं हो कि बाजरे खाने की. में तोरी बना के दे दी तो भड़क रहा है मैं सामने वाला, तोरी भी बच्चे बनवाती हूँ, भड़क because रहे हैं। तोरी इज वेरी हेल्दी Yeah, ऑल्सो. No, I yeah, absolutely very मैं good. हाँ, हमारे अलग farm अलग पे तरीकों उगती से. है, हम हाँ. अरे तो बहुत अच्छी हमारे चीज़ I है. really दाल like it वाल में actually. डाल के यश सब्जी खाता नहीं तो कभी उसको मतलब ऐसे छोटे को मलो दे दे प्लेट में दे दे, और बोलना भाभी अंदर खड़ी है देखेंगी प्लेट में सब्जी खाई कि नहीं खाई. तो ऐसे बोलता है, ऐसे खाते खाते वो खाते, भाभी को बोलना मैंने 3 बाइट खाए हैं. तो ही इज मोर डिफिकल्ट टू फीड देन माई किड्स. बट या घर में जो आपने पूछा मेन्यू की बात है, बस दोनों तरफ का मिक्स मेन्यू बनता है. So I think looking at all this conversation, I feel that women at a certain level like to be called superwomen. Is it like, do you feel the high of being a superwoman कि मैं खाना भी सबका सेट करती हूँ, मैं काम भी कर सकती हूँ, मैं बच्चों का भी ध्यान रख सकती हूँ, मैं गाड़ी भी चला सकती हूँ, और मतलब everything. I don't need anyone. Is that like a high for I women? think Chavi, also one thing, bharosa hona chahiye. I'll tell you why. Many times I have seen that a mother, she doesn't rely on the father. Yeah, that's true. You But why know? is that? Because it's in her DNA, she feels that she's a superwoman, and she will not rely on the father. Bharosa nahi hai. So even if the father wants to do something, he steps back, unfortunately. And that's where equal shared parenting suffers a lot. Because one person wants to become an authoritative parent. Yeah. Tries to find out mistakes. And most of the times I have seen that the mother finds out those mistakes in front of the child. So that's a big, big damage. And I think that's where most fathers take a step back. That's because where most fathers lose their confidence, they lose basically. their confidence, or
फिर बाद में जाके बोलते हैं कि छोड़, करना ही नहीं है, हाँ हमें करना ही नहीं है. सी मेरा मानना ये है कि हाँ घर जो है वो एक औरत से बनता है. मैं एक मतलब मैंने अपनी मदर को देखा है, अपनी वाइफ को no देखा you're है. absolutely और right I can't और आई disagree थिंक वुमन सुपर वुमन जो है वो इसलिए भी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ सेइंग इट बिकॉज अ मैन विल मेस इट अप. yeah I think on every level, if you see, I'll be very frank with you. You guys will get into detailing, which is a very good thing, on a micro level. And आप हमेशा देखोगे a man a little, I think I wouldn't say careless attitude, but a हो जाएगा carefree attitude, And I think when it comes to running a home, making it a home thing with your parents or with your in-laws or with your children and your husband, and of course अपनी भी नीड घर पे पूरा देखना. आई थिंक उसके लिए एक माइक्रो लेवल डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक अ वुमन डज इट मच मोर एंड शी लाइक्स इट टू डू इट इन हर वे and कि also मेरा घर है. हाँ also I बट think एक like you वन मोर थिंग अबाउट इट कि जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ और लाइक मेनी वुमेन लाइक मी, हमने अपने पापा को कभी वो काम मैं अगेन बेस पे जाऊंगी जो रूट्स है ना. आई ऑलवेज से कि रूट्स में जो है वो गड़बड़ है, वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है पर वहीं से आती है सारी चीज. वो influence जैसे मैंने अपने पापा को कभी वो काम करते हुए नहीं देखा, यश ने अपने पापा को कभी वो करते हुए नहीं देखा, सो वो भी नहीं करते. तो ऐसा नहीं कि चांस नहीं दिया पर वो हुआ नहीं. तो कहीं पे जाके यू कांट, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बचपन में यश कहते थे कि अरे नहीं जाएगी 2-3 दिन स्कूल तो क्या हो जाएगा, इट्स ओके. एंड मैं कहती थी कि नहीं, तो उसको ये आदत लग जाएगी ना कि ऐसे It's okay. बगैर बीमार पड़े भी स्कूल की छुट्टी हो सकती है. आई डोंट वांट हर टू थिंक दैट. आई डोंट वांट हर टू थिंक कि ठीक है ना स्कूल की छुट्टी करना. नो, वो उसके अंदर डालो कि नहीं ठीक है, इफ यू आर ऑल राइट, इफ यू कैन गो टू स्कूल यू विल गो टू स्कूल. सो अब दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ ना कि वहां से कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए. सो आई जस्ट होप दे चेंज एंड so समथिंग actually बेटर if कम्स you अप if लाइक you मोर look at मेन it लाइक यू. like you're talking about this being at the DNA level तो होता क्या है that women are intrinsically the nurturers and men are intrinsically the hunters and gatherers right Yes. तो आदमी जो है उसको ये उसका मेंटल मेकअप इस तरह से है कि मुझे प्रोवाइड करना है. आई हैव टू प्रोटेक्ट माई फैमिली, आई हैव टू प्रोवाइड फॉर देम, आई हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल, आई हैव टू गो आउट एंड वर्क, विच इज वाई डैड गिल्ट कम्स मोर व्हेन दे आर नॉट बीइंग एबल टू वर्क एज मच. एंड मॉम्स आर बिल्ट to be the nurturer, to be the caregivers, to take care of everyone कि मैं in-laws का भी ख्याल रखूँ, मैं बच्चों का भी ख्याल रखूँ, मेरा पति भी खुश रहे, खाना भी अच्छा रहे. Now of late women have been working so much also, they are trying to be financially independent also, but वहाँ पे problem आ जाती है because men are trying to actually ape women roles and women are trying to ape men roles, and then you're talking about equal parenting because actually I think parenting कभी equal थी ही नहीं. लेकिन अभी हम फिर भी उसको थोड़ा एक्सप्लोर उस तरह से कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ रीज़न आई थिंक वाई स्कूल्स में अगर आप देखें तो प्राइमरी पेरेंट में 2 नाम होते हैं, माँ का और बाप का, लेकिन कॉल हमेशा पहले माँ को आता है. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले मदर को कॉन्टैक्ट किया जाता है. पीडियाट्रिशियन के भी क्लिनिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो पहले मदर को कॉल जाएगा. ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इट्स just the way it is, and I think till the time we keep trying to make it 50-50, Yes. it is I don't think it's even possible, And it because is not a overnight thing, Chavi. It's not going to happen overnight. plus like he said It's na, over a like period he of said time. ki if my wife needs this support then I have to give her this support. Yes. She doesn't need this support, so why am I trying to go and do only there, because वहाँ पे उसको irritation ज़्यादा हो रही है. Right. उसको काम उसको टेबल स्ट्रेट चाहिए, मैं स्ट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ, कम से कम मैं उसकी चेयर तो स्ट्रेट कर सकता हूँ, मैं वही कर दूँ. You know, that just to understand what your partner needs from you is Correct. something which I think equal parenting can be defined like that कि 70-30 यहाँ है, 30-70 यहाँ है, और इसलिए हम 50-50 हैं. नहीं, और ये अच्छी बात है बिकॉज हर घर की एक अपनी कहानी है, Yeah. I would say, Yes. and Yes. what works for you might not work for Work me. for somebody Exactly. else. Correct. So, एक वाइफ अगर एक चाहती है कि मेरा हस्बैंड जो है 10% ही दे भाई, Correct. you give your 10% जितना दे पाए. एग्जैक्टली, Correct. या नहीं तो फिर आप 75% दो. यहाँ पर एक हस्बैंड की ड्यूटी है कि यार if I have to give 25%, I have to give the best. Yes. Yeah. You Okay, know- so I'll give you one example जैसे about यश also कि मैंने कहा कि मैं वो डिसाइड करती हूँ कि स्कूल के बारे में मैंने अपना एक एग्जाम्पल बताया, तो उसी में एक दूसरा मोड है जहाँ पे वेर ही टेक्स द चार्ज. जैसे एक बार हम गए थे, गोवा गए थे, एंड मैंने
एक रूम बुक किया, अच्छा रूम था वो होटल का, वी वर स्टेइंग इन ताज, और मैंने एक रूम बुक किया। तो हमारे वहाँ पहुँचने के बाद यश कहीं चला गया आधे घंटे के लिए, एंड हम लाइक यहाँ पे अनपैक करना है, ये है ही नहीं, हेल्प करने के लिए कभी होता ही नहीं, दिस एंड दैट, ये ब्ला, एंड देन ही केम विद द होटल स्टाफ एंड देन ही सेड कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम हियर। तो हम लाइक व्हाट, वाई, अभी तो पहुंचे हैं, कहाँ शिफ्टिंग, ये वो। तो इज लाइक चलो ना कहीं दूसरा रूम, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वी आर गोइंग समवेयर एल्स, ऐसे सम अदर होटल। बोले नो, नॉट सम अदर होटल, सम अदर रूम। आई एम लाइक बट व्हाई, बिकॉज एक कमरा हमारा था, साइड में मेरी सिस्टर और मम्मी वो भी थे, उनका भी कमरा था। हम लाइक कम ऑन। तो इज लाइक नो नो, मैं बहुत चिड़ी हुई थी उस वक्त में, बिकॉज हम जस्ट पहुंचे थे और यहाँ पे मैं अनपैकिंग करने की सोच रही हूँ। एंड देन ही टुक अस टू दिस बिग विला एट ताज ऊपर, एंड दैट वाज लिटरली कॉस्टिंग टू मच, बट द टाइम वी हैड देयर ना, उस वक्त तो मुझे लगा पैसे खर्चने की सोचता रहता है, जब भी देखो तभी, कभी बचाने की सोचता ही नहीं है, इसको खर्च नहीं होता। मैंने कहा इतने बड़े की जरूरत क्या है, इतने से तो लोग 2 रूम में काम हो रहा था। हाँ, but that memory we still talk about. Kids, they still talk about, you know. So that thing, ये जो चीज़ है वो करता है ना, वो मैं कभी, because as I told you, because again I'm from a lower middle class, तो मेरे से होता ही नहीं इतना एकदम से, you know. Can you believe I still don't have anyone, मेरे पास कोई भी एक branded bag नहीं है आज तक। So सबको लगता है कि अरे तेरे पास 2-3 होंगे, मैं क्या, नहीं मेरा उतना होता ही नहीं एकदम से कि मैं। You're talking about branded bags. I तो come from a decent middle class family where my father was a businessman, जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं थी हमें। लेकिन आज भी Blinkit से जब मैं प्रिंट आउट मंगाती हूँ ना 15 रुपए का, तो 15 रुपए डिलीवरी चार्ज मुझे बहुत एग्जैक्टली वो खटकता है। मुझे 30 रुपए नहीं देने हैं, मेरे ऑफिस में प्रिंटर था यार, मैं वहां से क्यों नहीं लेके आई, you know. So that is a mentality. I think we are generally savers. Yeah. And where there the men, they give us वो एक छोटा सा वो होता है ना, वो खुशी वो दे देते हैं, वो हमको बोलते हैं काम, जैसे यश ने मुझे बहुत काम डाउन भी किया है कि इतना टेंशन मत ले, 100 रुपए गए ना, कोई बात नहीं, काम डाउन, इट्स ओके, इट्स ओके। मेरा होता है अरे नहीं वो शायद 10 रुपए करके मेरे 10 रुपए का नोट नहीं I दिख रहा totally get है, it. But I want to ask you, talking about finances, Romit, that the phases when you're out of work, and I'm talking specifically after you're a father, कि suddenly 1 साल काम ही नहीं है, पैसा नहीं कमाया, सिर्फ खर्चा किया है, how does it feel as a man? See, to be very honest, हमको पहले से ही पता है कि जो एक्टिंग करियर है बहुत ही अनसर्टन करियर है। वी हैव आवर हाइज एंड लोज, एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि बॉस जब आप कमा रहे हो यू सेव वेल। एंड यू नो देयर वाज अ ग्रास हॉपर एंट स्टोरी बचपन में हमने पढ़ी थी कि फॉर योर रेनी डेज यू हैव टू बी वेरी रेडी। सो वो हमेशा से याद है। और यू नो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप काम कर रहे हो तो उस वक्त यू नो डोंट बी इम्पल्सिव एंड एंड अप you know But spending money. I'm talking about the stress. I understand saving, but do you ever feel like I'm the father, I'm the provider of this for this family, and I don't have work right now, I need to get work? Yeah, of course, I think about it, you know, that I need to, you know, work and I need to be in front of the camera, and because I'm happy, I'm happiest in front of the camera. जब मैं काम कर रहा हूँ set पे, I enjoy it. It's just not the money part. It's my passion. You know, I want to play another character. You know, work with a different team and enjoy myself. So, and when it comes to you know working, I don't take it like that कि अरे I'm not shooting right now. मेरा वैसा stress नहीं होता है कि when it comes to money and all that, because I invest well when I'm not shooting. Okay, so you know that you're good for this amount of time. Yes, तब तक तो कुछ ना कुछ मैं कर yes. लूँगा. And at the same time, as a parent, now I'll tell you that, you know, as a parent, it's also your responsibility to take care of yourself. Because when you are with a child, you know, your child wants to see your father or your mother happy. Yeah, and they want to look up to your parents. Yeah, they have to look up. Right. अगर एक mother जो है, अगर if she's working, she's balancing out life, अपना work life and childhood, you know, बच्चे को भी देख रही है, और अगर if she has anxiety issues or if she's hyper, the child is also absorbing that. Yeah. Absolutely. You know? So you should not be. You have to be you have to take care of yourself. Yeah, you which know? is why you crack the silly jokes that you do. You take care of everybody's I anxiety. take care of everybody, and you need to be happy. You need to smile. You need to, as I said, you know, it's just not about life is not about taking it too seriously. You know, whether you live for 100 days or you know you live till 80 years, you have to see to it that जो भी आपके आसपास है, just make sure that everybody is happy. You know, like they're comfortable, and you're a support. You have. So here I wanted to say one thing, that equal parenting is not a competition. Yeah. Yeah. Yes. It's not equality between the parents. It is equity for the children. Yes. You know, Well and said. I really Very well believe in this, because you're doing it at the end of the day for your children. You know, so that they can grow up in an atmosphere which is filled with love, Yeah. support, and happiness. Yeah. And you grow with your child at the end of the day. Exactly.
Absolutely, which is why it's okay if the father is secretly ordering ice creams. No, but sometimes I Spoiling the tell my children. children कि ये जो मेरी आदत है ना, ये मत सीखना, ये पापा से सीखो. जैसे about हाँ, work you asked correct. him ना, Yeah. Yash is also very calm when he's not working also ना. When मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ बच्चों के सामने नहीं, but उसको जाके बोलती हूँ कि अरे यार काम कुछ नहीं तो होना है, काम नहीं है, हाँ. कुछ तो होना चाहिए, वो होना चाहिए. I He's think like same, कि yeah. आ ही जाएगा जब होगा. बोले तू ही बोलते ना 2 आईब्रोज के बीच में जो होता है कोई नहीं लेके. And he ना he'll put it in a कॉमिक वे टू मेक मी लाफ. और मैं इरिटेट हो जाऊँ कि मैं इतना सीरियसली बोल रही हूँ और तुम हंसी मजाक में उड़ा रहे हो उस चीज को. बोले मैं भी सीरियस हो जाऊंगा, तू भी सीरियस हो जाएंगे, तो क्या करेंगे फिर हम दोनों सीरियस Yeah. होके. बोले काम डाउन हो जाएगा. एंड अगेन एट द दूसरी तरफ उसको ये पसंद भी है कि he is playing it calm, I am little aggressive Yeah, about yeah. it. तो वो बोलता नहीं है वो, but I know. Men have this thing. If the woman behaves like a child, you know that the man is fathering her, Yeah. taking care of her. And if the woman is too independent, means the man is not taking care of her at all. Yeah. So it's not a bad thing actually to be like a child in front Child of your sometimes, man. yeah. अच्छा, एक चीज ये और मुझे बताओ कि when one of the parents is working too much, okay, whether it's a mother or a father, I'm not going to get into that right now, और वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, does that give them the right to be an absent parent? I mean, see, frankly, कमाना एक बात है और दूसरा वो माँ कोई कभी पिता की जगह नहीं ले सकते और कोई पिता कभी माँ की जगह नहीं ले सकता. एक बच्चा जो एक फन है या जो है वो पिता के साथ कर सकता है, वो माँ कितना भी चाहे पर वो नहीं होगा. लाइक मेरे और यश में, अगर यश मायरा को लेके जाएगा, वो लेके चल बाउंस में चलते हैं, मैं बोलूंगी हम गेम्स पे चलते हैं, यू नो, तो वो उसको कुछ ऐसा करवाएगा जो मैं जान मेरी होती ही नहीं. वो ट्रेन जो जाती है ऊपर से वो वाला, मेरी जो अटकती है जान उसमें, बट ही विल टेक हर, ही गोज विद हर ऑन राइड्स. उसने पहली बार मायरा को यश ने बिठाया था राइड पे, शी एंजॉयज इट सो मच. और मुझे लगा था कि मुझे डर लगता है, तो हो सकता है उसको भी डर लगता है, इतना छोटा बच्चा उस पर राइड पे बिठा दिया, ये वो, मैं बहुत गुस्सा थी उस पर, बट शी एंजॉयड इट. सो उन चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए आपको फादर ही चाहिए, कुछ चीजों के लिए आपको माँ ही चाहिए. तो वो बहुत ज्यादा काम करते हैं. इफ द फादर इज एब्सेंट और द मदर इज एब्सेंट, इट शुडंट हैपन टू अ किड. वो ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना चाहिए, नहीं, वो होना नहीं चाहिए. या तो कहीं ना कहीं पे वो टाइम आप मैनेज करो, बट गिव टाइम टू योर चाइल्ड, एनीवन, अ मदर और अ फादर. नो, आई थिंक इट्स नॉट इन आवर हैंड्स एक्चुअली. जैसा हमने करियर चूज किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 14 घंटे 15 घंटे आप घर से बाहर हो. जब एक शो जो है सेटअप हो रहा होता है, द फर्स्ट 3 months आर वेरी हेक्टिक. So at that time, you know, Tina understands that, and that compatibility is there in that relationship where she keep, you know, Papa's going to come home late, and there are times when Tina, you know, when the year endings are there and her stress is Corporate there at life is work. very stressful Yeah, it's as well. very very stressful. And सबसे बड़ा challenge जो होता है वो टीना के लिए ये होता है, as a woman I would say, कि she comes back home at 7:30, 8 in the night, and एक given time gap में she wants to teach Reha, and the child might not want to learn or study at that time. So, you know, I tell her to relax at that time, you know, I tell her it's okay, you know, the child will take care of I it later. totally relate to that because अभी एक अरीजा के एग्जाम्स चल रहे हैं and I have kind of told her you have to block my calendar. Yeah, You can't just in the middle of my meeting, you can't just come and tell me that now I want you to teach me. yeah. So I'm like, okay, 5 to 6 we'll block for you. But then 5 to 6 नहीं करना है अभी मुझे. हाँ, मैं right. तो लू में हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो 6 बजे आ गई. I'm like, बेबी मेरी मीटिंग है अभी, मैं नहीं कर सकती हूँ. So I totally get it. But I think it's a very good point to end this conversation where what you said made a lot of sense, that it's what a father can do for a child, a mother cannot, and vice versa. So the roles of every both the parents is extremely important for the child, for the child's healthy upbringing. And what you spoke about, the atmosphere being full of love, is extremely important. And what you said about supporting your spouse, and 50-50 parenting नहीं होती है. Equal parenting is not just about कि diaper कौन change करेगा, because diaper change करना is not what all parenting is about. और किसी को कोई यहाँ award नहीं मिल रहा है, कोई reward नहीं मिल रहा है as a parent. Eventually आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपने relationship के लिए कर रहे हो अपने बच्चे के साथ. And as a couple, as a family, there are certain decisions that you have taken, certain responsibilities that you have divided amongst each other. This is what I think. But I would love to understand from you people, what do you think, what is equal parenting? How does this apply in your lives, in your families? आपके husbands, wives क्या करते हैं, father, mother क्या करते हैं? How do they contribute to being the ideal parent for your child?
please put that down in the comments below. And I hope you enjoyed this conversation and there were some takeaways for you as well, as they were for all of us, I think for me as well. And you're watching Candid Confessions, the Raw Roundtable. This is Oliver signing out. Love and peace from us to you.